Hello everyone, welcome to Ansarkari. This video is the continuation of the number system series and we'll be dealing with the questions related to remainder as well as some divisibility questions. So the first question for this video is find the least number which must be subtracted from this particular number so that the resulting number is exactly divisible by 73. And the second question talks about addition कि इस नंबर में क्या ऐसा लीस्ट नंबर है that we must add so that the resulting number is exactly divisible by 107. So these two questions are similar, just that in this case they're talking about subtraction and in this case they're talking about addition in this particular number, in the respective numbers. So in the first question, if we focus, find the least number that must be subtracted from this. So we have been dealing with these kind of questions before as well. This is pretty simple. So in this case, we will just simply divide this particular number by 73 and the remainder that we'll receive is 71. So what this means is, if we consequently subtract this number 73 from this particular number, the remainder or the extra thing that is left is 71. यानी कि 73 को अगर हम 126 times, क्वेश्चन इज व्हाट टाइम्स, जो हमने ऊपर पहले भी पढ़ा था कि व्हाट इज डिविजन. सो अगर हम 73 नंबर को इतनी बार इस पूरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, द एक्स्ट्रा थिंग दैट इज लेफ्ट और द रिमाइंडर दैट इज लेफ्ट इज 71, which means कि if we subtract 71 from this number, we'll get the answer to this question. So हमें resulting number मिल जाएगा which will be exactly divisible by 73. So this is the case of subtraction. तो इस केस में simply हमें remainder हमारा आंसर हो जाएगा. But in case of addition, what happens is, in this question they say that what is the least number which must be added to this particular number so that this number is completely divisible by 107. So in this case, the remainder that we have is 55 after dividing. But here they are not asking about what should be subtracted. Rather they are focusing on कि हमें इस नंबर में कुछ ऐड करना है. तो हम ऐसा क्या ऐड करें कि फिर ये 107 से डिविजिबल हो. सब्ट्रैक्ट करने में हम सिंपली 55 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. बट इन केस ऑफ एडिशन हमें ये पता लगाना है कि इसमें क्या ऐसा मिसिंग चीज़ है जो इसमें हमें ऐड करनी है ताकि इससे डिविजिबल हो. सो वील सिंपली सब्ट्रैक्ट 55 from 107. So basically after subtracting we'll get our answer which is 52. So this means that we need to add 52 to this particular number to get a number which is exactly divisible by 107. तो ये दो cases हो गए subtraction के और addition के. These are very basic questions. Now moving on to the next question. A number when divided by 357 gives a remainder 37. By dividing the same number by 17, the remainder would be. So what this question is saying is, suppose there is a number x. So this number, when we divide this number by 357, we get a particular remainder which is 37. अभी कह रहे हैं कि हमें सेम नंबर यानी कि हमें सेम नंबर x को अगर 17 से डिवाइड करेंगे, then what will be the remainder in this case? Now the thing that we need to observe is 17 is a factor of 357. यानी कि when we divide 357 by 17 तो हमें एक पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा, इट इज़ डिविजिबल. जो रिमाइंडर हमारे आएगा इस केस में वो 0 आएगा. विच मीन्स के अगर कोई भी नंबर, जैसे कि हमने पहले वीडियो में रूल पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो इस पर्टिकुलर नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं वो भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली. द वाइस वर्सा केस इज नॉट एप्लीकेबल बट दिस केस इज एप्लीकेबल, राइट. कि अगर ये जो मल्टीपल है इस फैक्टर का, अगर ये किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो दिस पर्टिकुलर नंबर विल ऑल्सो डिवाइडेड ऑब्वियसली. तो यानी कि हमें इतना पता है कि जो ये नंबर है, ये जितना भी नंबर है 17 उसको तो डिवाइड करेगा ही करेगा. प्लस में 37, सिंस 17 इज स्मॉलर देन 37, we'll check by dividing 37 by 17 to find out that what will be the actual remainder, and the answer for this will be 3.
Now, just as we have inferred till now in these kind of questions, we just need to focus upon the remainder. कि क्या पूछा गया and what exactly is it that we need to find out. These basic concepts like factors, multiples and divisibility have been discussed in the previous 1 or 2 videos. So you can check them or perhaps go through them once again. Continuing with the next question. A number when divided by a certain divisor left a remainder 241. When twice the number was divided by the same divisor, the remainder was this. Find the divisor. Now इस क्वेश्चन में हमें डिवाइजर निकालना है एंड द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गिवन इज कि पहला एक जो नंबर है सपोज इट इज x, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर डिवाइजर से तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 241. तो हमें नहीं पता कि डिवाइजर क्या है. लेट अस सपोज डिवाइजर इज दी. फिर सेकेंड केस में अगर हम ट्वाइस द नंबर यानी 2x को दोबारा से डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर बचता है 112. नाउ दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द डिवाइजर. तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज अगर एक जो नंबर है इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय अ पर्टिकुलर नंबर और हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है इतना, तो जब हम उस नंबर के डबल को इस पर्टिकुलर डिवाइस से फिर से डिवाइड करेंगे तो कायदे से जो रिमाइंडर बचना चाहिए इट शुड बी 482, यानी कि इसका ट्वाइस, क्योंकि नंबर का ट्वाइस हुआ है तो जब रिपीटेडली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचना तो वैसे इतना ही चाहिए, बट बिकॉज ऑब्वियसली द डिवाइजर विल बी स्मॉलर दैन दिस पर्टिकुलर नंबर, तो हमें दोबारा से ये चेक करना पड़ेगा कि डिवाइजर एग्जैक्टली है क्या बाय सब्ट्रैक्टिंग the next remainder from this particular number, which will be 370. So 370 will be our divisor and this will be our answer for this particular question. Right after the answer, this question can also be explained with formula as well as a simpler value if we take. So for example, there is a number 8 which when we divide by 3, the question will be 2 and the remainder that we'll receive will be 2. Right? तो ये हमारा रिमाइंडर जाएगा इस केस में. ये हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ समझने के लिए कि हमने ऐसा क्यों करा. नाउ सेकेंड इफ से कि हम जो ये डिविडेंड है इसको हम डबल कर रहे हैं, यानी कि जो ये नंबर है इसको हम डबल कर रहे हैं, लेकिन हम सेम डिवाइजर से ही इसको डिवाइड कर रहे हैं. फिर जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा इन दिस केस द क्वेश्चन विल बी 5 और रिमाइंडर जो हमारे पास बचेगा वो 1 होएगा. नाउ ऑब्वियसली वैसे तो 4 बचना चाहिए था रिमाइंडर, राइट, क्योंकि हमने नंबर को डबल करा, बट सिंस जो ये 3 है दिस इज स्मॉलर दैन दिस पर्टिकुलर नंबर, तो हम अगेन एक बार डिवाइड करके चेक करेंगे. सो द फाइनल रिमाइंडर विल बी 1. दिस इज द वे दैट वी हैव वर्कड इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल. तो इस केस में भी डिवाइजर एंड दूसरा एक रूल भी होता है जस्ट टू फाइंड द डिवाइजर, हम रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3 हम ये एक रूल अप्लाई करते हैं. नाउ इन दिस केस हमारे पास स्टार्टिंग में 2 रिमाइंडर्स नहीं है बट जो रिमाइंडर्स है दैट इज 241, तो उसी को हम 241 प्लस 241 करेंगे. देन 482 में से वील फाइनली सब्ट्रैक्ट द थर्ड रिमाइंडर which is 112 and hence we'll receive the answer which is equal to the divisor. This is a trick formula that can be used in these kind of questions. Now the 58th question is, two numbers when divided by a certain divisor give remainders this and this respectively. When their sum is divided by the same divisor, the remainder is 13. Find the divisor. तो इस केस में भी हमें divisor निकालना है, the same thing. So simply अगर हम formula से देखें, see I have explained the question how this thing works. But अगर हम सिर्फ formula से देखें तो it will be 43, that is remainder 1 plus the remainder 2. And after adding we'll finally subtract 13 from this. So after adding this we'll get 80. Now 80 minus 13 will be 67. So 67 will be the divisor. So this will be the answer for this particular question. The 68th question says, what least number must be added to this particular number, that is 7231, so that the resulting number is exactly divisible by 5 and by 9 together. तो सी इस केस में एक प्रोसीजर तो ये हो सकता था कि अगर कोई नंबर को हमें 5 और 9 से चेक करना है तो इफ़ दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 45 तो ऑटोमेटिकली वो 9 और 5 से डिविजिबल होएगा. एक तरीका तो ये है. द सेकेंड वे इज द सिंपलर वे इज, इस केस में हमें पूरा डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है.
और फिर उससे हमें निकालना पड़ेगा कि क्या हमें ऐड करना है लीस्ट नंबर, राइट। जैसे कि हमने पहले जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे उनमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें हमने एडिशन वाली चीज़ देखी थी, तो सिमिलर है इससे। जस्ट दैट इसमें डिविजिबल का केस भी इंक्लूडेड है, डिविजिबिलिटी का। सो एंड द सेकंड और द ईजियर वे इज कि हम 5 से चेक करें कि इस नंबर को कैसे हम 5 से डिविजिबल बना पाए, ऐड कर करके, मतलब चेक करके कि इसमें क्या क्या ऐड हो सकता है, एंड देन हम 9 से देखें। तो आई विल गो विद द सेकंड केस फर्स्ट। तो ये हमारे पास नंबर है। अब पहले अगर हमें 5 से चेक करना है तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। या तो इसमें जैसे हम 4 ऐड कर दें तो ये 7235 बन जाएगा, आइदर वी कैन ऐड 4। लेकिन 4 ऐड करने से इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 9। 5 से तो हो जाएगा बट नॉट बाय 9। कैसे पता लगा? सी 7 + 2 इज 9, तो यानी ये पोर्शन तो हो रहा है 9 से डिवाइड। मतलब हमें टोटल सम चेक करना होता है, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं थोड़ा नंबर्स को वैसे इकट्ठा करके बता रही हूँ। एंड इन दिस केस यहाँ पे 4 बन रहा है, सो वी नीड टू ऐड 5, राइट। लेकिन अगर हम 4 करके देखें, क्योंकि एंड में 5 या 0 भी आना चाहिए 5 से चेक करने के लिए, एंड 9 के लिए इस पूरे का सम या तो 9 होना चाहिए या फिर 18 होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो नाउ इन दिस केस 5 और 9 से चेक करने के लिए आइदर इट कैन बी 35 और इट कैन बी 40 अगर हम 7240 करते हैं तो। लेकिन 7240 से भी इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 9। द रीजन बीइंग 7 + 2 9, 9 + 4 विल बी 13। now 13 9 के टेबल में नहीं आता, so it is not possible. Then the another multiple or the another number that can be is 5 का 7245। तो हम 5 को लेकर के चल रहे हैं, फिर हम क्रॉस चेक कर रहे हैं 9 से। दिस इज वन वे टू डू इट। नाउ इन दिस केस 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 5 विल बी इक्वल टू 18। तो ये जो इनका सम आ रहा है दिस इज डिविजिबल बाय 9, विच मीन्स दैट ये नंबर 9 से डिविजिबल है। एंड एंड में बिकॉज 5 है, देन अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 9, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। Now the other method that I was talking about is अगर हम directly 45 से डिवाइड करते हैं इस पूरे नंबर को, so I won't divide now, but after dividing the remainder that we will receive will be 31। यानी कि ये नंबर 31 एक्स्ट्रा है जो इसको होना चाहिए था, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था। बट क्वेश्चन में बिकॉज एडिंग लिखा है, that what is the least number that must be added, तो adding के केस में just as we have studied right now, हम 45 में 31 को माइनस कर देंगे, receive 14। तो 14 को फिर हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा। So the one way for this question becomes कि हम ये नंबर पता लगा लें, and obviously then we will subtract 7231 from this particular number। फिर अगेन सब्ट्रैक्ट करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 14। अगर हमको सब्ट्रैक्ट करें फिर हम चेक कर लेंगे ना कि हमने कितना कितना ऐड करा है, तो उसके अकॉर्डिंग कि वो हो रहा है डिविजिबल। एंड द अनदर वे इज सिंपली डिवाइडिंग, तो इसलिए पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, फिर निकाल के फिर सब्ट्रैक्ट करना, एंड देन वी नीड टू ऐड जो भी हमारा रेसिड्यू बचता है इस नंबर में, तो फिर ऑब्वियसली इट विल बी डिविजिबल। So in this case, the answer for this question is 14. Thank you.